Okay, so what we talked about was the movement of water. Look, what we did in the last class, we talked about the tissues of the roots and the stem. Let's revise them once again. So सबसे पहले हमारे पास on the outermost region of the roots we have the root hair cell. Then in both the stem and the roots what we have is the epidermis. Then it's an outer protective layer. We also have an inner protective layer protecting the vascular bundles, that's the endodermis. And between the epi and the endodermis what we have is the cortex. The roots, since there are many roots and many roots are making up a single stem, the roots have a single vascular bundle, while while there are many vascular bundles inside a stem. ठीक है, हमेशा हमारे पास vascular xylem was going to be in the middle while the phloem is going to surround it. So we have the xylem right here in the middle, right? And the phloem is surrounding it. Walaikum assalam, beta. Now, how does the water move? The water first goes into the root hair cell. Once it's in the root hair cell, then it's going to move toward the xylem. And once it's in the xylem, it's going to go up towards the leaf. That process is basically, or that movement of water molecules up the xylem vessel towards the leaves is called as transpiration. हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी कि भाई how does the water molecules move from the soil into the root hair cells. The root hair cells, the rectangular cells with the hair-like extensions, which is called as the root hair, basically, it increases the surface area to volume for absorption. The root hair cells also have many mitochondria, so that energy could be produced for active transport. Active transport of what? Active transport of mineral ions, which are in a lower concentration in the soil and in a higher concentration inside the cytoplasm. So these mineral ions move from a region of low concentration, that is the soil, into the cytoplasm, where they are at a higher concentration through carrier proteins by the process of active transport. So let's write it here कि भाई ये जो हमारे पास nitrate ions move कर रहे हैं, all of these mineral ions that are moving inside, they're moving through carry active transport, right? अच्छा जी, then we talked about the whole thing. फिर हम लोगों ने जो आखिरी बात करी थी वो जाइलम वेसल के बारे में करी थी. हम लोगों ने क्या कहा था कि जाइलम वेसल्स आर डेड वेसल्स and for support they have this wax around them. This wax hardens over time, providing them with structural support, right? And this is what we call as lignin. Now, if you were to take the whole xylem vessel out, we'll actually see the xylem vessel is covered with lignin. Between or inside the lignin, there are small spaces so that water molecules can move in, and these are called as pits, right? They're very small and allows water molecules just to seep through them. ठीक है. Up now that we know the structure of the xylem vessel, now that we know that it actually has pits and everything, let's talk about movement of water molecules from the root hair cell to what? To the xylem vessels. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं कि मेरे पास वालेकुम अस्सलाम बेटे. Once the water molecules right here are in the root hair cell, for example, this is the root hair cell, and let's make the hair like extension as well. I'm first going to make the cell walls, then I'm going to make the cell membranes on the inside. I'm not going to make any vacuole. ठीक है. ये हमारे पास क्या है? रूट हेयर सेल है. अच्छा, अब रूट हेयर सेल के बाद अगर हम लोग फॉर एग्जांपल if we try to go straight from the root hair cell towards the xylem vessel, what's the next cell that we'll encounter? Epidermis. ये जो पूरी लेयर है हमारे पास आफ्टर द रूट हेयर सेल, पहले वाटर यहाँ जाएगा, फिर एपिडर्मिस से कहाँ मूव करेगा? इनटू द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस के अंदर. अगर हम लोग फ्लोएम को बाईपास कर दें तो वो किधर जाएगा? इनटू द जाइलम वेसल, राइट? अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास?
तो हम लोग क्या करते हैं, हर लेयर के ना एक एक सेल ले लेते हैं. देयर गोइंग टू बी मेनी सेल्स, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट हाउ दिस वाटर मूव्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिंगल सेल. अब हम लोगों ने क्या देखा, रूट हेयर सेल के बराबर के अंदर हमारे पास ये जो सेल है, ये कौन सा वाला सेल है, दिस इज द एपिडर्मिस और एपिडर्मल सेल. सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस विल बी कॉल्ड एज एपिडर्मल सेल्स. एपिडर्मल सेल्स के बराबर के अंदर वी आर गोइंग टू हैव द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल सेल्स. कॉर्टेक्स के बराबर के अंदर वी गोइंग टू हैव द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस. ठीक है, just going to move it a bit down, right? ओके. और कॉर्टेक्स के बराबर के अंदर हमारे पास कौन सी वाली वेसल रखी हुई है, हमारे पास जाइलम वेसल रखी हुई है. तो हम लोग जाइलम वेसल को यहाँ साइड से इस तरीके से बनाए थे कि ओके, इट्स राइट नेक्स्ट टू, इट्स राइट नेक्स्ट टू द कॉर्टेक्स. अच्छा, और जाइलम वेसल के ऊपर की तरफ क्या होगा, ऑब्वियसली वील हैव द लीफ. ठीक है, तो हम लोगों ने एक पूरी जाइलम वेसल, एक पूरा वेसल बना दिया यहाँ. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई मसला? यस, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मिपसाम. कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, फिर बेटे. ठीक है, सो दीज आर द सेल वॉल्स. अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन्स बनाते हैं. आई एम गोइंग टू मेक द सेल मेम्ब्रेन्स इन ग्रीन, आई टेल यू व्हाई. तो हमारे पास ये सारी सेल मेम्ब्रेन्स आ गई. आई एम नॉट ड्राइंग द लार्ज परमानेंट वैक्यूल, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या पता है कि हमारे पास जाइलम वेसल्स के अंदर वी हैव दीज ओपनिंग्स, एंड दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज व्हाट, these openings are called as the pits, right? अच्छा जी. अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है. अब लेट्स अज्यूम कि ये जो हमारे पास सेल्स है, बराबर 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 बराबर, दे आर ऑल adjacent cells, right? And let's say that all of them have the same water potential. इन सबके पास जो वाटर मॉलिक पोटेंशियल है वो सबका क्या है, सबका सेम है, सबका इक्वल है. ऑल ऑफ देम आर आइसोटोनिक टू ईच अदर. ठीक है भाई. अच्छा, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, right outside the root hair cell what we have is the soil. अब रूट हेयर सेल ने क्या क्या करा, अब रूट हेयर सेल ने क्या करा, अ, हाँ, तो फिर डिफ्यूजन भी हो सकता है, ऑस्मोसिस नहीं होगा. द प्लांट सेल्स डू नॉट बर्स्ट बिकॉज़ दे बिकम टर्जिड. दे डोंट बर्स्ट, बेटे, दे बिकम टर्जिड. सेल वॉल है ना उनके पास, तो बर्स्ट तो नहीं होंगे वो. अच्छा जी, अब देखो क्या हुआ, अब मेरे पास सराउंडिंग द रूट हेयर सेल्स आर वाटर मॉलिक्यूल्स, and these water molecules through osmosis are taken up by the root hair cells, right? अब मुझे एक बात ये बताओ, अब अगर मैं कंपैरिजन करूं रूट हेयर सेल और एपिडर्मल सेल्स का, एक्सक्यूज मी, दीज सेल्स आर साइड बाय साइड, बराबर बराबर सेल्स हैं ये, राइट? तो अब मुझे बताओ, जब रूट हेयर सेल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए कंपेयर टू द एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मिस, रूट हेयर सेल्स के का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, और इट वुड नॉट चेंज. इसको दोबारा सुनो. when the root hair cells are going to absorb water molecules through osmosis, will the water potential of the root hair cells में water की volume बढ़ रही है, right? So will the water potential of the root hair cells increase or decrease? Very good, Websam. It will increase. It will increase. Very good. Compared to what? Compared to the cell that's right next to it, right? What's the cell right that's right next to it? The epidermal cells. So what's going to happen? These water molecules are going to move from the root hair cells into the epidermal cells by the process of osmosis. ठीक है भाई. अच्छा, आप जिस तरीके से ये एपिडर्मल सेल्स अपनी सेल मेम्ब्रेन रूट हेयर सेल्स के साथ शेयर कर रहे हैं,
they're also sharing their cell membranes with the cortical cells. अब why am I bringing the cell membranes? Because we know osmosis के लिए partially permeable membrane is a requirement, right? अच्छा, अब मुझे बताओ, जब रूट हेयर सेल से हमारे पास एपिडर्मल सेल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स आए, तो कंपेयर टू बिफोर, पहले से क्या एपिडर्मल सेल्स की वाटर की वॉल्यूम बढ़ गई? वेरी गुड। तो कंपेयर टू द कॉर्टिकल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स का, ये एपिडर्मिस का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा. So water molecules will again move into the cortex by the process of osmosis. Are we getting this? Yes. Yes. अब जब कॉर्टेक्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ गया कंपेयर टू एंडोडर्मिस. So water molecules are going to move from the cortex into the endodermal cells. And between the endodermal cells and the xylem vessel, we still have a partially permeable cell membrane, right? Exactly तहा, exactly. और इसको accelerate भी करेंगे तहा हम देखते हैं. So ultimately, these water molecules from the endodermal cells will move from a region of higher water potential towards a region of lower water potential into where? Into the xylem vessels, filling it up. अब इससे हमारे पास क्या हो रहा है? Xylem vessels के अंदर water की entry हो रही है, तो xylem vessels fill up होती जा रही हैं. यहां तक बात समझ में आ रही है? तो एक तरीका हम लोगों ने क्या देखा, आउट ऑफ द टू वेज, एक तरीका हम लोगों ने क्या देखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स नंबर वन आर मूविंग फ्रॉम adjacent सेल, हम लोगों ने कह दिया सेल टू सेल मूव कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? ऑफ ऑस्मोसिस. अच्छा, अगेन अगेन, these water molecules are moving through osmosis, right, from a region of higher water potential towards a region of lower water potential. ऐसा ही है बेटे. पिट्स क्योंकि ना हमारे पास मिप्साम पिट्स और पेरी साइकिल वगैरह सिलेबस में नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई डोंट very burden my students with that. अच्छा, अब कमिंग बैक हियर. तो देखो, अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि through osmosis water molecules move from a region of high water potential towards a region of low water potential. ठीक है. अच्छा, अब मुझे एक बात ही बताओ, अगर हम लोग बात करें वाटर पोटेंशियल की, अगर मुझे किसी भी चीज का वाटर पोटेंशियल ज्यादा करना होगा, मैं दो चीजें कर सकता हूँ. या तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ा सकता हूँ, या फिर उसमें क्या चीज कम कर सकता हूँ? सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम कर सकता हूँ. ऐसा ही है. अगर किसी भी चीज में सॉल्यूट्स कम हो जाएंगे कंपेयर टू वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा. या फिर अगर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू सॉल्यूट्स, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा. इजी, राइट? लाइक you can literally do a 6 7 here, राइट? अच्छा जी. देर एग्जैक्टली बेटा, देर कम रेशियो है ना वाटर मॉलिक्यूल वाटर पोटेंशियल मेरा बेटा. ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से अगर वाटर पोटेंशियल किसी जगह का लो करना हो हमें, तो हम क्या करेंगे? मुझे बताओ, अगर फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिक्रीज द वाटर पोटेंशियल समवेयर, तो जब भी वाटर पोटेंशियल लो होगा, तो अगेन दो चीजें हो सकती हैं. क्या क्या होगा? एट सॉल्यूट्स, या तो हम लोग सॉल्यूट बढ़ा दें, या फिर उसमें वाटर कम कर दें. आइदर वे. इजी. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, अब मुझे आप बताओ, अगर 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 वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा होगा, इनडायरेक्टली, हाँ बेटा बेटे, बट इन अ रेशियो, इन अ सेम सोल्यूशन, राइट? or in two different solutions in the same solution, or between two different solutions separated by a partially permeable membrane. तहा बेटे. अच्छा, ये एंडोडर्मिस क्या करता है? दिस एंडोडर्मिस tries to create a root pressure, और रूट प्रेशर से अगेन, क्या मुश्किल चीज नहीं, आसान सी चीज है. तुम लोगों ने अभी मुझे इसका पूरी पूरी एक्सप्लेन खुद कर दी है मुझे तुम लोगों ने अभी.
अभी दोबारा करोगे। रूट प्रेशर से क्या होता है, ये जो ऑस्मोसिस से मूवमेंट हो रही है ना, ये फास्ट हो जाती है, ये एक्सेलरेट हो जाती है। कैसे कैसे? अब एंडोडर्मिस क्या करता है, एंडोडर्मल सेल्स के पास जो आयंस होता है ना, राइट, द आयंस दैट these endodermal cells have, they actively transport these ions from a region of low concentration towards a region of high concentration, where into the xylem vessels. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहां देखो, हमारे पास कुछ आयंस थे, किधर थे, कॉट एंडोडर्मिस में थे। आयंस आर soluble इन वाटर, दे आर solutes। हमने उनको किधर डंप कर दिया, हमने उनको जाइलम वेसल में डंप कर दिया। तो जाइलम वेसल के अंदर अब सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, एंडोडर्मिस के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम। देखो, दीज आयंस आर मूविंग फ्रॉम द एंडोडर्मिस इनटू द जाइलम वेसल, राइट। तो जाइलम वेसल के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और एंडोडर्मिस के अंदर आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई। यहां तक बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली मिफ्साम। आर वी ऑल गेटिंग दिस गाइस? ये वाली बात समझ में आ रही है? हाँ, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं बेटा। सी, ये रहे। अब इससे क्या होगा, जाइलम वेसल का जो वाटर पोटेंशियल होगा ना, वो और कम हो जाएगा, एंडोडर्मिस का वाटर पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। सो दिस एंडोडर्मिस, as quickly as it receives water, it's going to lose to the xylem vessel. तो एंडोडर्मिस के अंदर वाटर पोटेंशियल दोबारा कम हो जाएगा, कॉर्टेक्स में क्योंकि एपिडर्मिस से वाटर आ रहा है दोबारा बढ़ गया, तो जितना भी वाटर कॉर्टेक्स में आया वो सारा एपिडर्मिस में चला जाएगा, और एपिडर्मिस वाला वाटर मॉलिक्यूल थ्रू ऑस्मोसिस जाइलम वेसल में चले जाएंगे। तो देखो, बात वही हो रही है, बात वही हो रही है। वो अल्टीमेटली डायरेक्ट जाइलम में ही जा रहा है ना चंदा। ये वही वाली चीज हो रही है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, बट नाउ इट्स हैपनिंग फास्ट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। तो हम लोग रूट प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोगों ने कहा, इट्स बेसिकली द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ions into the xylem to decrease its water potential, accelerating the rate at which it fills up। ठीक है? Are we getting this? नहीं, ज्यादा ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। नहीं, वापस नहीं आ, यूजुअली नहीं आता बेटे, बिकॉज एज एज सून एज, अभी तो हम लोग सिर्फ फिलिंग के बारे में बात करते हैं ना, मोस्टली क्या हो रहा होता है कि एज सून एज द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द जाइलम वेसल, दे आर मूव्ड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लीव्स। यहाँ एक सेक्शन क्रिएट हुई हुई है, which is causing the water molecules to move all the way up towards the leaves। ठीक है, ट्रांसपिरेशन वाली चीज, एग्जैक्टली, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम बेटा। उस पर हम लोग आते हैं, उस पर हम लोग आते हैं। ठीक है साहब, यहाँ तो कोई मसला मेरे बच्चों, यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? Does anyone want me to repeat anything? ताहा बेटे, वनीसा, बरीरा, महमूद, मुनीसा। Hey, I've got a Muniza and a Vaniza in my class। Wow. ओके, नहीं, फ्लोएम वेसल का बेटा हमारे पास छोटा सा है, ज्यादा इतना ज्यादा नहीं है चंदा। फ्लोएम वेसल ना इन वो तुम लोग एएस में डिटेल के अंदर पढ़ोगे बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब देखो, अच्छा अब मुझे एक बात ये बताओ। सो लेट्स से देयर इज सम वाटर स्पिल, राइट। सो इफ लेट्स से ऑन द फ्लोर फॉर एग्जांपल पानी भी रहता, मैंने पानी गिरा दिया, द थिंग्स दैट आई कैन यूज टू वाइप दैट वाटर इज अ कपड़ा, अ क्लॉथ दैट इज मेड अप ऑफ कॉटन। ठीक है, आई कैन यूज अ टिश्यू पेपर, आई कैन मोर सिंपली यूज
अब पेपर, इवन पेपर भी वाटर एब्जॉर्बेंट होता है ना। एंड टॉवल अगेन कॉटन क्लॉथ के अंदर आ जाता है। लेकिन I won't be able to soak up. Oh, come on, Hassan. I'm trying to soak the water up, trying to wipe it off, not burn my house down, blowtorch. अच्छा खैर, I'm back here. बट लेकिन मैं क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, मैं नायलॉन का कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकता। नायलॉन इज वाटर रिपेलेंट। ठीक है। आई डोंट नो। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू, देखो नायलॉन जो होता है ना वो वाटर रिपेलेंट होता है। आई कैन नॉट यूज प्लास्टिक्स टू एब्जॉर्ब द वाटर, राइट। पॉलीअमाइड्स, वही वाली बात। ठीक है। अच्छा क्यों क्यों क्यों, इसको देखो। अगर तुम लोगों ने कभी देखा हो तो हमारे पास कॉटन के कपड़े हो गए, टिश्यू पेपर हो गए या पेपर हो गया, उसके अंदर देर आर फाइबर्स दैट रन नेक्स्ट टू ईच अदर लाइक दिस। और वो कैसे रन कर रहे होते हैं, अगर हम लोग कॉटन में थ्रेड्स देखें तो दे रन, यू नो हाउ टू ईच अदर, दे रन पैरेलल टू ईच अदर इन अ क्रिस क्रॉस फैशन। इन अ कैसा वाला फैशन? इन अ क्रिस क्रॉस फैशन। ठीक है। टिक टैक टो खेलते हो ना, उस तरीके से। Like I remember, like as a kid, what I used to do was I used to put my amma ka dupatta around my face, right? And I used to pretend to be a ghost, and but I could still see क्योंकि वो see through होता है, especially अगर उसके पास light पड़ रही हो ना। तो if you're going to have some cloth made up of cotton या lawn और उसको तुम light के पास रखोगे तो you could actually see through it। होता क्या है, हम कहते हैं इसे कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं एक तरीके से। ये जो क्रिस क्रॉस फैशन में थ्रेड्स, ये फाइबर्स अरेंज होते हैं ना, उनके बीच के जो स्पेसेस होते हैं उसके अंदर पानी जो होता है वो जस्प हो जाता है, राइट। इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड। मेक सेंस? डू वी गेट दिस? ठीक है। सो अगेन व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज हमारे पास जो सेल वॉल होती है ना, इट्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। कौन सा वाला देखो, मिप्सम, ये जो स्पेसेस बीच में बन जाते हैं ना, water molecules are able to move into these spaces, right? In the in the tissue paper, in the paper, right? So they're able to get absorbed in them. Now the very same arrangement that we have is of what? Is of the cellulose cell wall। सेल वॉल बिल्कुल ऐसी होती है, उसके अंदर जो सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं। ठीक है। तो द सेल वॉल्स ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। वो पानी को जस्प कर सकती है। यहाँ तक मेरे बच्चों बात समझ में आ रही है? नाउ one last thing before we move on। let's say let's say there was this person who was wearing a white colored shirt। Please do not art shame me when I draw the shirt। Right, so a person was wearing a shirt और उसके पास यहाँ एक पॉकेट थी। ठीक है। अच्छा जी। अब ऑन द ट्री, not on the tree, oh, on the on in the shirt there was a pocket। and let's say I was wearing this shirt or I was using a red board marker to teach, और मैंने क्या करा, उस मार्कर को अनकैप्ड अपनी पॉकेट के अंदर रख दिया, राइट। सो व्हाट्स गोना हैपन? एक मार्कर है, वो अनकैप्ड है बिल्कुल, और उसको मैंने एक वाइट कर अपनी वाइट शर्ट की पॉकेट में रख दिया। व्हाट्स गोना हैपन? एग्जैक्टली उसके अलावा द इंक विल सीप। वेरी गुड हसन। द फैब्रिक विल एब्जॉर्ब द डाई। और बरीरा एब्जॉर्प्शन के अलावा क्या करता रहेगा वो इंक जो होगी एब्जॉर्ब हो होके वो स्प्रेड करती रहेगी अंटिल इट फॉर्म्स अ स्टेन। एज हसन सेड के सर, इट विल सीप। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी चीज,
ये सीप कब तक करेगी? जब तक इस इंक की कार्ट्रिज के अंदर इंक बचेगी। जैसे ही ये इंक की जो कार्ट्रिज होगी मार्कर के अंदर, एज सुन एज इज गोइंग टू रन ड्राई, एज सुन एज इज गोइंग टू रन एम्प्टी, राइट, अगर जब इंक खत्म हो जाएगी तो ये स्टेन और आगे नहीं बढ़ेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, गुड इनफ, गुड इनफ। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, सम गिव मी मिनट। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अब इसको यहां देखो। रूट हेयर सेल्स आर एक्सपोज टू द सॉइल। रूट हेयर सेल्स आर एक्सपोज टू द सॉइल, और उस सॉइल के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो ये रूट हेयर सेल्स की सेल वॉल है, ये इन वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जज्ब कर लेती है, लाइक दिस। उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नाउ दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट मूविंग डाउन ऑस्मोसिस, कोई वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं है कि सिर्फ सेल वॉल के अंदर जज्ब हो रहे हैं। सेल वॉल इज नॉट पार्शियली परमिएबल। ठीक है, राइट। अच्छा, अब देखो क्या होगा। जब मेरे पास रूट हेयर सेल की सेल वॉल के अंदर पानी आके भर जाएगा, उसके बराबर में तो इट्स ऑल्सो शेयरिंग सेल वॉल्स विद एपिडर्मल सेल्स। तो ये सारा वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन, थ्रू इट वुड इट्स गोइंग टू सीप, एज अगेन एज सन सेड के सर, इट्स गोइंग टू सीप अहेड। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आगे की तरफ सीप कर रहे होंगे, एंड दिस इज गोइंग दे आर गोइंग टू सीप ऑल द वे until the endodermis। और अगर पीछे सॉइल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स अभी भी प्रेजेंट होंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, सो दे गोइंग टू गो इनटू द xylem vessel। तो water molecules also move from cell wall to cell wall, right, until they drain into the xylem vessel. By what? Through absorption, through capillary action, right? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबके? अच्छा जी, so now that we know how water molecules move up in, or have, have moved into the xylem vessel, before we talk about how they move up, we're going to talk about some properties of water. ठीक है? So we don't need this anymore. Does anyone have any problem so far? अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा? Okay, all right, good enough. अच्छा, अब देखो, अब बिफोर वी टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंट, हमें वाटर की एक दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है? सो वी गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, कि भाई देयर आर सम properties of water, ठीक है? Excuse me. The very first property of water is what we call as cohesion, ठीक है? What's cohesion? और cohesion के साथ साथ water molecules जो होते हैं वो और क्या शो कर रहे होते हैं? They also show adhesion. So what's cohesion? What's adhesion? Cohesion is basically the ability to stick to each other, while adhesion is the ability to stick to other surfaces. हमारे पास जो UHU, Manisha की favorite Samad bond, right? Alfie, they're all adhesives, right? They stick two different things together. So they, again, adhesion क्या होती है? Ability to stick to other surfaces. सरमद नहीं, समद bond. अच्छा, अब how is the water molecules doing that? देखो बेटे, होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो होता है ना, अब ठीक आ रही है अब आवाज बेटे? ओके। अच्छा, अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से जॉइंट अप हुए हुए होते हैं। होता क्या है मेरे बच्चों,
A molecule of water is H2O, right? A single molecule of oxygen joined up through covalent bonds with hydrogens. Both oxygen and hydrogens are partially charged. अब since they're partially charged, they can form intermolecular forces, कौन सी वाली to be more specific, hydrogen bonds with two more molecules of water. These two more molecules of water can form hydrogen bonds with four more molecules of water, which can form hydrogen bonds with eight more molecules of water. तो बेटे बेसिकली कहानी क्या चल रही है, हमारे पास इन अ होल बॉडी all the water mol जीरो हो जाएगा ना बेटे, water molecules are attached with each other. ठीक है. And this is the reason कि हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रीम. कहने का मकसद क्या हुआ, लेट्स से भाई इफ आई वुड हैव अ ग्रुप ऑफ मार्कर्स इन माय हैंड, as soon as I'm going to let them go, as soon as I'm going to let them go, what's gonna happen is they're going to break apart. वो एक साथ मूव नहीं करेंगे, वो एकदम से दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, as they be moving. But if I'm going to turn a tap on, unless and until उस टैप के अंदर कोई फिल्टर लगा हुआ है, the water molecules are going to move down as a whole stream. जब तक वो किसी सरफेस को हिट नहीं करते, जब तक वो स्कैटर नहीं होते. आर वी गेटिंग दिस? ये वाली बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? राइट right? अच्छा. पहली बात तो ये हो गई, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है. दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स ना दूसरी सरफेसेस के ऊपर भी चिपक जाते हैं. हमारे हाथों पे लाइक वी नो व्हेनेवर वी वॉश आवर हैंड्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे दे स्टिक ऑन टू आवर स्किन. वी हैव टू शेक देम ऑफ, एंड इवन व्हेन दे स्टिकिंग ऑन टू द स्किन, दे फॉर्म ड्रॉपलेट्स. बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक ड्रॉप के अंदर आके अक्यूमुलेट हो जाते हैं. कभी कभार हम लोग क्या देखते हैं, गाड़ियों की विंडशील्ड्स के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ दे स्लाइड ओवर द विंडशील्ड. ब्रेक नहीं होते, पूरे के पूरे जो ड्रॉप्स होते हैं वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे होते हैं. दे लाइक स्टक ऑन टू द विंडशील्ड. डू वी गेट दिस? प्रिटी मच मैं सम प्रिटी मच. ठीक है. अच्छा जी, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखो होता क्या है, होता क्या है. वाटर मॉलिक्यूल्स इस जाइलम वेसल के अंदर भी, जब व्हेन दे आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स द लीफ ना, तो वो एक एक करके नहीं जाएंगे, वो एज अ होल बॉडी मूव करते हैं. दीज वाटर मॉलिक्यूल्स, दे मूव एज अ होल बॉडी इस तरीके से. राइट right? अच्छा. Why are they moving as a whole body? Because every water molecule is attached with another one through hydrogen bonds. ये थोड़ा सेकेंडरी, थोड़ा केमिस्ट्री में आया था, बट खैर यू गेट द पॉइंट, यू नो कि भाई व्हाई आर दे मूविंग टुगेदर. दूसरी बात ये कि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे, उनके अंदर जो मिनरल आयंस हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स उनसे भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं एडिशन के थ्रू. वाटर मॉलिक्यूल जाइलम वेसल्स की वॉल्स के ऊपर भी लगे हुए हैं. ठीक है. आर वी गेटिंग दिस? अच्छा जी. अह, एक सेक्शन क्रिएट हो जाती है बेटा. वो कैसे होती है, विल टेल यू. कम बैक हियर. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी चीज अब वही किरत के सवाल के सर, हमारे पास हाउ आर द वाटर मॉलिक्यूल्स डिफाइंग ग्रेविटी. अब इसको देखिए. स्टिकिंग द सरफेस बिकॉज ऑफ एडिशन, अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं हम. अब इससे हमारे पास दो और कॉन्सेप्ट्स आते हैं. एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड द सेकेंड थिंग दैट वी हैव इज कॉल्ड एज मास फ्लो. ठीक है. अच्छा.
अब मुझे एक बात ये बताओ, अब मुझे एक बात ये बताओ। लेट्स से आई गेट माई सेल्फ, हम लोग क्लास में होता ना, आई वुड हैव ट्रीटेड यू ऑल टू अ जूस का डब्बा। सो लेट्स से इफ आई हैड अ जूस का डब्बा, राइट, और कैप्री सन, वट एवर यू लाइक। अच्छा, सो लेट्स से इनिशियली this juice का डब्बा, I haven't inserted the straw yet, it's full of juice, right? ठीक है। तो अब मुझे एक बात ये बताओ, अब मुझे एक बात ये बताओ, ऑन द वॉल्स ऑफ दिस जूस का डब्बा हमारे पास कौन सा वाला प्रेशर एक्ट कर रहा है? हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। इन एवरी बॉडी दैट एग्जिस्ट हियर ऑन अर्थ, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। ठीक है। Why are we not imploding is because the bodies exert the very same pressure towards the outside. ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब अगेन, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास ये जूस के मॉलिक्यूल्स हैं। if the dabba is unopened, if I try to squeeze that juice का डब्बा, I can actually feel some force. अगर मेरे पास एक पानी की बॉटल भी होती है एंड इफ इट्स कैप्ड अप, if I try to squeeze it, I could actually feel some force. तो हमारे पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इनकी जो whenever water molecules exist as a whole body, they try to oppose the atmospheric pressure so that whatever the vessel that they are in does not burst. ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्या देखता हूँ, एक और चीज, I started to drink the juice. What's gonna happen? जितना इनिशियली अगर तुम लोगों ने कभी देखा हो, whenever you're trying to suck the liquid from the straw, this juice का डब्बा, this juice का डब्बा initially it starts moving inwards, ये अंदर की तरफ, it starts crumpling inwards, right? बात समझ में आ रही है? And as soon as we remove our mouths from the straw, एक फक करके आवाज आती है, and the walls they go back to their original shape. Why did they go to the original shape? Is because, अब देखो, जूस जब जूस खत कम हो रहा था, when the liquid was decreasing, the hydrostatic pressure or the pressure inside was decreasing as well. So atmospheric pressure was able to crush these balls. But once we let it go inside of atmospheric pressure को, they're two different things. यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? अब but if I start drinking the juice once again, the first thing now that's going to go into my mouth is going to be the air, और फिर हमारे पास जो लेफ्ट ओवर जूस होगा, that's going to come into the mouth. Now, since I am a Pakistani, I like to get my money's worth. So we try to keep drinking the juice till the last drop. And once we're done with the juice, and once we suck out all the air as well, जितना हम लोग इस पे सक्शन लगा रहे होते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे होते हैं, जूस का डब्बा अंदर की तरफ होते जा रहा होता है। क्योंकि अब अंदर एयर भी नहीं है तो एयर प्रेशर नहीं है, अंदर कोई मेरे पास बॉडी ऑफ वाटर नहीं है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. बरीरा उस पर आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, तुम सही कह रहे हो लेकिन उस पर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? So this pressure that a body of water applies to oppose atmospheric pressure is called as the hydrostatic pressure. मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, गिव मी अ मिनट।
ठीक है जी। अब इसी कॉन्सेप्ट को ना हम एक और तरीके से देखते हैं। नाउ लेट्स से आई हैव अ ग्लास and that glass is, let's say, filled with some cola or something, right? And what we have right here in the middle is a straw. मैं थोड़ी सी बड़ी straw बना रहा हूँ ताकि हमें बात समझ में आ जाए. Whenever you insert the straw, what happens is what happens is inside the straw जो थोड़ा सा liquid होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले जाता है. So what basically happens right here is मेरे पास ये सारा liquid ना इधर आ गया. मैं थोड़ा सा straw को थोड़ा सा और ऊपर करूंगा. So I'm going to be enough, right? Like this. Now what happens is, इसको देखो गौर से guys, focus please. अब देखो हो क्या रहा है. हमारे पास इनिशियली स्ट्रॉ का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें एयर है. ऑल ऑफ दिस पार्ट, इट हैज दैट पर्टिकुलर लिक्विड, राइट? इट हैज दैट पर्टिकुलर लिक्विड. ठीक है. एंड अगेन लिक्विड आर मोस्टली वाटर. अब हो क्या रहा है, इस पूरे स्ट्रॉ के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है. ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एयर ओपोज कर रही है एंड एट द बॉटम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपोज कर रहा है. एक चीज याद रखो बेटे, एक वेसल के अंदर, इन अ सिंगल वेसल, जहां भी हमारे पास वाटर की वॉल्यूम ज्यादा होगी वहां हमारे पास कौन सा वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, वहां हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा. जहां वाटर की वॉल्यूम कम होगी वहां हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा. लेकिन ऊपर अभी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम क्यों नहीं है? क्योंकि वहां सारा एयर प्रेशर लगा हुआ है ना. दिस एयर प्रेशर इज कीपिंग दिस वाटर डाउन. अब इसको देखो. अब लेट्स से व्हेन द पर्सन स्टार्ट सकिंग ऑन टू द स्ट्रॉ, एक सक्शनिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाता है. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट्स गोइंग टू कम इनटू आवर माउथ इज गोइंग टू बी एयर. अब जैसे ही हम लोग इस एयर को रिमूव करेंगे ना, इस एक स्ट्रॉ के अंदर, इस एक सिंगल वेसल के अंदर दो रीजन्स बन गए. एक जहां मेरे पास बॉडी ऑफ वाटर मौजूद है, एक जहां मेरे पास बॉडी ऑफ वाटर मौजूद नहीं है. इन अदर वर्ड्स, in a part of this vessel I have a body of water and a larger volume, or more volume of water, hence the hydrostatic pressure is high. At the top there is less or no volume of water, तो यहां का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. डू वी गेट दिस? अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? दिस बॉडी ऑफ वाटर, दिस होल बॉडी ऑफ वाटर, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर आए, along with the dissolved substances, is going to move upwards from a region of higher hydrostatic pressure towards a region of lower hydrostatic pressure. You see, everything that we have, it always go from where it's from at high pressure towards where it's a low pressure. हमारे पास aerosol के cans होते हैं, उनके अंदर pressurized liquid होता है. It has a higher pressure compared to the atmospheric pressure. Whenever you press the nozzle, that the pressurized liquid starts coming out. Similarly, abhi a couple of years ago there was a submarine, Ocean Gate की, it imploded. Explode नहीं हुई, implode हुई. The pressure outside the submarine was high compared to the inside, so it got crushed. हमारे पास एक्सप्लोसिव्स होते हैं, वो एक्सप्लोड होते हैं, उनके अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है, सो दे स्टार्ट, दिस प्रेशर ट्राइज टू गो आउटवर्ड्स इनटू द एटमॉस्फेयर. इसी तरीके से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी मूव कर रहा होता है. Up now knowing, so again, this is what this movement of water as a whole body is called as mass flow. बस एक आखिरी चीज before we get done. Mass flow की, what's the definition of mass flow? It's the movement of water as a whole body along with what? Dissolved substances from high hydrostatic pressure to
लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है। अब आसान सी चीज, अब नाउ लेट्स पुट टू एंड टू टुगेदर। अब so again, let's say I have a xylem vessel right here, ठीक है। अच्छा, at this is a single xylem vessel extending all the way from the roots, all the way till what, all the way till the leaf, ठीक है। तो इसके टॉप के ऊपर हमारे पास क्या है, वी हैव अ लीफ राइट हियर, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द जाइलम वेसल अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, रूट हेयर सेल होगा। मैं यहां सिर्फ समझाने के लिए रूट हेयर सेल बिल्कुल बराबर के अंदर बना रहा हूं, ठीक है। एंड दीज आर द पिट्स, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताओ, गाइस फोकस प्लीज। एक मिनट कुमैल, मैं दिखा रहा हूँ, पहले इस बात को समझ लो मेरा बच्चा। अब मुझे एक बात ये बताओ, लेट्स से फ्रॉम द बॉटम हमारे पास क्या हो रहा है। गाइस आई एम गोइंग टू टर्न द चैट्स ऑफ नाउ, फोकस प्लीज। सो व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास फ्रॉम द रूट हेयर सेल्स इनडायरेक्टली, सही है, वो पूरा क्रॉस होते हुए आ रहा है, हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे। इनडायरेक्टली हमारे पास रूट हेयर सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स फिलअप हो रहे हैं। तो एक तरीके से एट द बॉटम, फ्रॉम द बॉटम द जाइलम वेसल इज गेटिंग फिल्ड अप लाइक दिस, राइट, along with the dissolved mineral ions as well, ठीक। let's say for whatever reason this leaf loses water, this leaf loses water to what, to the atmosphere, right। तो अब क्या होगा, the water molecules from the top of the xylem vessel, the water molecules from the top of the xylem vessel, they have moved where, they have moved in the leaves। अब सिर्फ यही वाली जाइलम वेसल देखो मेरे बच्चे लोग, जब only when water molecules from the top of the xylem vessels have moved towards the leaves, at the top of the xylem vessel वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो गई, कम हो गई या ज्यादा हो गई। Did the volume of water in the xylem vessel, did it increase or did it decrease? It decreased. Very good. देखो बरीटा, it the water however it got lost into the atmosphere, right? So मैं क्या बता रहा हूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग, वाटर वेपर्स, ठीक है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो वाटर मॉलिक्यूल जाइलम वेसल में थे ना, वो अब लीफ के अंदर मूव कर गए, थ्रू वॉट एवर प्रोसेस, वी डोंट केयर। तो व्हाट हैपेंड टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द अपर रीजन ऑफ जाइलम वेसल, इट डिक्रीज्ड, राइट। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है, राइट। अच्छा जी, अब दूसरी बात मुझे बताओ, एट द बॉटम ऑफ द जाइलम वेसल, this xylem vessel is receiving water from the root hair cell, right? तो एट द बॉटम मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ रही है, कम हो रही है। मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ रही है, इट्स इंक्रीजिंग। वेरी गुड। सो कैन आई से एट द बॉटम ऑफ द xylem vessel, because the volume of water is high, there is going to be a high hydrostatic pressure. At the top of the xylem vessel, there, since the water molecules are leaving, the xylem vessel is losing water molecules, there is going to be a low hydrostatic pressure. Do we get it? जहां वाटर की वॉल्यूम कम है, वहां हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। So these water molecules, along with the dissolved mineral ions, as a whole body, are going to move from the bottom of the xylem vessel where they're at a lower hydrostatic pressure towards the top where they are at a higher hydrostatic pressure by the process of what मेरे बच्चों, mass flow। तो अभी मुझसे किसने पूछा था कि how does the water molecules move against the gravity? This is how they're moving against the gravity in the xylem vessel, the very same way they move up in a straw। अब ये जो सक्शनिंग मैकेनिज्म हम लोग स्ट्रॉ के अंदर लगाते हैं ना,
वो सक्शनिंग मैकेनिज्म लीफ लगा रहा है by moving these water molecules out into the atmosphere. अभी जो लीफ के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है ना, which is causing this water molecules to be moved up, that is what we call as ट्रांसपिरेशन. देखो बरीरा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस एक सिंगल वेसल के अंदर बन रहा है. लीफ तो पूरा ऑर्गन है ना मेरा बेटा. So we're only talking about the movement of water molecules from the bottom of a single xylem vessel up to the top of it. Do we get this? Right, so we'll stop here today. In the next class, we're going to revise this one more time, and then we're going to start with transpiration. I hope you guys have a good night.